Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज की इस वीडियो में हम CSIR NET जून 2021 में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. So let's start with the first question. The question says that question is from part B and question says that how many generators does a cyclic group of order 36 have? मतलब हमें group of order 36 में generators बताने. As we know that number of generators in cyclic group of order n is equals to phi of n here. So as here given that group of order equals to 36, so generators is equals to phi of 36. So by doing prime factorization, 36 can be written as here 4 into 9 and 4 can be written as here 2 raised to the power 2 and 9 can be written as 3 raised to the power 2 here. So phi of 36 is equals to phi of n हमारे पास write out किया जाता है अगर हमारे पास n is equals to, if n is equals to p1 raised to the power r1, p2 raised to the power r2, p3 raised to the power r3 and then so on, where p1, p2 are primes, then phi of n can be written as here n into 1 minus 1 by p1 into 1 minus 1 by p2 and then so on here. So by this, as here 36 can be written as 2 square into 3 square. So phi of 36 is equals to n into n equals to 36 here into 1 minus 1 by 2 here, since p1 equals to 2. Similarly p2 equals to 3 here into 1 minus 1 by 3 here. So by simplifying this, we can write it as 36 into 1 minus 1 by 2 can be written as here 1 by 2 and 1 minus 1 by 3 can be written as here 2 by 3 here. So 2 is cancelled out with 2 and 3 is cancelled out with 36, which can be written as 12. So number of generators in phi n is equals to 12 here. So number of generators is equals to 12. So our option second with option ID 1942 is correct answer. Now come to the next question. So the next question is also from part B here. The question says that let S equals to n, where n is between 1 to 999 and 3 divides n and 37 divides n. How many integers are there in the set S complement, where is collection of all n's where n is between 1 to 999 and n does not belongs to S. हमें यहाँ से S complement की कार्डिनलिटी निकालनी है, नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालने हैं उसमें, और S हमें उन सारे n का कलेक्शन दिया गया है जो 1 से 999 के बीच में है, बट 3 तो डिवाइड कर रहा है उसमें n को, साथ ही 37 भी n को डिवाइड करता है. ऐसे n का कलेक्शन हमें लेना है. सो अगर हम फर्स्ट कंडीशन ले, हमें अगर फर्स्ट सेट हम x अज्यूम करें जो कि जिसमें वो सारे इंटीजर्स हैं जो 3 को डिवाइड करते हैं, सो वो हमारे पास कलेक्शन क्या आ जाएगा, टोटल नंबर 1 टू 999 है. सो टोटल एलिमेंट 999 है, उनमें से वो सारे कलेक्शन जो 3 को डिवाइड करते हैं वो सारे हमारे पास आ जाएंगे. यहाँ से 3 के डिवाइड 333. Similarly 37 के लिए अगर फाइंड आउट करें, टोटल 999 एलिमेंट्स है, सो x37 कैन बी रिटन एज हियर 999 by 3 which is by 37 here, so which can be written as here 27. As we know that GCD of 3 and 937 is equals to 1 here, so number of intersecting element in both set is equals to 1 here, so we can write it as here, since GCD of 3 and 37 is equals to 1 here, so intersecting elements of x3 and x37 is equals to here, we can write it as here 3 into 37 which is equals to 111. So number of element is divides 111 is equals to here 999 divided by 111 which is equals to 9 here. So as we know that A probability of A union B, or we can write it as element of A union B, number of element in A union B is equals to number of element in A plus number of element in B plus number of element in A intersection B here. So as we can see here, number of element in x3 is equals to here 333, number of element in x37 is equals to 27 here, and number of element in intersecting set is equals to 9 here. So by simplifying this, we can write it as here 333 plus 27 minus 9 is equals to here 351. This one is cardinality of set S here. We have to find cardinality of S complement. So S complement
cardinality of S complement can be written as here total number of element. So total number of element is equals to 1 to 99. So total number of element is 999 minus of 351. Cardinality of S here total minus cardinality of S, which is 999 minus 351, which is equals to cardinality of S complement here. By simplifying this, we can write it as here 648. So 648 is our final answer. So by comparing from options, here we get our option second with option ID 1938 is correct answer. Now come to the next question. Next question is from part C. The question says that let P be the prime number and NP be the number of pairs of positive integers xy such that 1 by x plus 1 by y is equals to 1 by p raised to the power 4. Which among the following are possible values of NP? हमें यहाँ से NP के लिए possible values find out करनी है. So first of all हमें यहाँ से equation दी हुई है 1 by x plus 1 by y which is equals to 1 by p raised to the power 4. So this question is from part C here. So by simplifying, so multiple correct option can be possible. By simplifying this, we can write it as here x plus y divided by x into y, which is equals to 1 by p raised to the power 4. By simplifying this, we can write it as here p raised to the power 4 into x plus y, which is equals to x into y here, or we can write it as here. This one is our equation. But if we write x minus p raised to the power 4 into y minus p raised to the power 4, we can write this term as here x into y minus p raised to the power 4 into x plus y plus p raised to the power 8 here. So as here p raised to the power 4 into x plus y equals to xy. So by simplifying this, we can write it as xy minus of p raised to the power 4 into x plus y equals to 0 here. So this value equals to 0 here. So by simplifying this, we can write it as x into p raised to the x minus p raised to the power 4 into y minus p raised to the power 4 can be written as here p raised to the power 8 here. So this value equals to p raised to the power 8 here. So as we know that if n is any number and prime factorization of n can be written as here p1 raised to the power r1, p2 raised to the power r2 and then so on here, then prime positive divisors of this n can be written as here tau n. So positive divisors can be written as tau n, which is equals to r plus 1 into r plus 2 and then so on here, where p1, p2, p3 are prime numbers and r1, r2 the possible values was the positive values of prime divisors in n here. So by simplifying this, as here this e is prime number as given in the question here and p raised to the power 8. So positive divisors or p raised to the power 8 can be written as here 9. So by the question we can say that here question says that NP is the number of pairs of positive integers xy. So positive integer xy is equals to 9 here, just because of positive divisors is equals to 9. So our option 9 with option ID 2132 is the correct answer. Now come to the next and last question of this video. Sorry, second last question of this video. First question, the question says that for a positive integer n, let tau n sigma n denotes the number of prime factors of n counted with multiplicity. For instance, sigma n equals to 1, sigma 6, sigma 3 equals to 1, sigma 6 equals to sigma 3, sigma 9 equals to 2 here. Let p is greater than 3 be a prime number and n equals to p into p plus 2 into p plus 4. Then which of the following statements are correct? हमें बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं. पार्ट सी का क्वेश्चन है. सिग्मा एन हमें यहाँ से गिवन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होना चाहिए. देयर एग्जिस्ट अ प्राइम p is greater than 3 such that sigma n equals to 3 here. Third option is saying that p can never be smallest prime divisors of n, and last one is p can be the smallest prime divisor of n. So first of all हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्वेश्चन से देखें, हमें यहाँ से n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है और यहाँ से सिग्मा n डिनोट करता है उसके प्राइम फैक्टर्स को. सो अगर प्राइम फैक्टर्स को डिनोट करता है तो सबसे पहले अगर n इक्वल्स टू 3 जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ n इक्वल्स टू 3 होगा, उसके केस में सिग्मा n हमारे पास सिग्मा 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 आएगा. क्योंकि 3 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन भी करते हैं तो उसमें एक ही प्राइम आता है, वो भी 3. सो यहाँ से 1 आएगा. अब अगर n इक्वल्स टू हम 6 लेते हैं, 6 को हम क्या राइट आउट कर सकते हैं 2 इंटू 3. यहाँ से कितने प्राइम आ गए 2 प्राइम आ गए. सो प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए टो ऑफ 6 विच इज सिग्मा ऑफ 6 विच इज इक्वल्स टू हियर 2
एक प्राइम ये है हमारे पास, एक प्राइम ये है विच इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से 2 राइट आउट कर दिया। सेम कंडीशन 9 के साथ है। 9 को हम क्या राइट आउट कर सकते हैं, 3 स्क्वायर। तो 2 प्राइम्स आ गए हमारे पास, 3 and 3। सो सिग्मा ऑफ 9 इक्वल्स टू कैन बी रिटन एज हियर 2। सो यहाँ से इसके लिए भी 2 आया। अब हमें n जो इंटीजर लेना है वो लेना है p इंटू p प्लस 2 इंटू p प्लस 4 हियर। ओके, सो यहाँ से हमें जो प्राइम लेना है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है उसकी वैल्यू 3 से तो ग्रेटर होनी ही होनी चाहिए। सो अगर हम लेके चलते हैं प्राइम p इक्वल्स टू 5, p के बाद 3 के बाद हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम 5 ही आएगा। सो n की वैल्यू हमें किस तरीके से लेनी है, पहले तो लेना है p। सो p इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, 5 इंटू 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, एंड देन 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। 5 7 9 की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। सो अगर इसमें प्राइम्स काउंट करें, सो इसमें प्राइम्स कितने आएंगे, इसमें प्राइम आएंगे 5 इंटू 7 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। सो यहाँ से टोटल कितने प्राइम्स आए हैं, 3 आए हैं। सो यहाँ से सिग्मा n क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इक्वल्स टू, यहाँ से सिग्मा n क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 विद मल्टीप्लिसिटी 2 आया है। पहला प्राइम 5, दूसरा 7, तीसरा 3 एंड 3। सो टोटल सिग्मा n हमारे पास यहाँ से 4 राइट आउट किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से n इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 7 ली, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7 इंटू 9 इंटू 11 विच इज इक्वल्स टू यहाँ से 7 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11। सो सिग्मा ऑफ n इक्वल्स टू हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरा आगे और इंटीजर ले सकते हैं, p इक्वल्स टू 9 ले लेते हैं। p 9 तो हमारे पास प्राइम होगा नहीं, 9 के लिए हम यहाँ से 11 लेंगे। नेक्स्ट प्राइम 11 अगर ले तो n इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 13 इंटू यहाँ से आ जाएगा 15। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 15 को 3 इंटू 5। सो यहाँ से भी हमारे पास सिग्मा ऑफ n इक्वल्स टू 4 ही बन रहा है। तो अगर इससे आगे भी आप काउंट करते हैं तो हमारे पास एटलीस्ट 3 से तो बड़ा ही बन रहा है हमेशा, 3 या 3 से बड़ा। किसी भी केस में 3 भी नहीं बनेगा, ग्रेटर देन 3 ही बनेगा। सो इस केस में हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन 3 ही बनेगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखते हैं एक इंटीजर तो ऐसा बनता ही है जो हमारे पास कंपोजिट नंबर की फॉर्म में आएगा। कंपोजिट नंबर की फॉर्म में आएगा तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सो एटलीस्ट 4 तो आ ही जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाएगा, जो कि कहता है p इज ग्रेट सिग्मा ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। और किसी भी केस में हमारे पास ये 3 नहीं बनेगा। सो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट हम यहाँ पे प्राइम कैसा भी लें, p प्लस 2 और p प्लस 4 में एक वैल्यू तो हमारे पास ऐसी आएगी ही आएगी जो 3 से डिवाइड होती हो। ऐसा हम कोई भी सेट नहीं ले सकते जिसमें तीनों वैल्यू ही 3 से डिवाइड होती हुई ना आए। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सेकेंड डिस्कार्ड हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखें थर्ड ऑप्शन हमें क्या कहता है, p कैन नेवर बी द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर। स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर नहीं हो सकता p। और लास्ट ऑप्शन कहता है p कैन बी द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर। p स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर हो सकता है, बट हमें यहाँ से n की वैल्यू लेनी क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है p की जो वैल्यू है वो हमें ग्रेटर देन 3 लेनी है। अगर p की वैल्यू आप ग्रेटर देन 3 लोगे तो उस केस में यहाँ से अगर 3 का केस लेते, 3 के केस में तो हमारे पास यहाँ से p स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर बन सकता था, क्योंकि 3 के केस में हमारे पास क्या आता, 3 इंटू 3 प्लस 2, यहाँ से 5 आ जाता और 3 प्लस 4 7 आ जाता। तो उस केस में हमारे पास यहाँ से ये 3 से डिवाइड हो ही जाता। बट अगर इसके अलावा आप कोई और केस लेते हो, तो यहाँ से अगर देखें पहला केस हमने जैसे 5 लिया था, सो 5 के केस में हमारे पास यहाँ से 5 7 9 की फॉर्म बनी थी। तो यहाँ से स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर क्या बना था, स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर हमारे पास 3 बना था, क्योंकि 5 तो हमारे पास प्राइम था, 7 भी हमारे पास प्राइम था, बट जो 9 बना वो हमारे पास कंपोजिट नंबर बन गया। कंपोजिट नंबर बनने के केस में उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के केस में 3 आ गया। इसी तरीके से अगर 7 लिया, 7 के केस में भी 9 आ गया, स्मॉलेस्ट प्राइम 3 हो गया। इसी तरीके से अगर आप 11 भी लोगे तो 11 के केस में भी यहाँ से 3 ही बनेगा, क्योंकि यहाँ से सीधी सी बात है प्राइम जब हम लेंगे n की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 3 लेनी है। अगर ग्रेटर देन 3 लोगे तो ओवरऑल हमारे पास प्राइम नंबर जो आएगा वो एक ऑड नंबर ही आएगा। हम जानते हैं सिर्फ एक ही इवन नंबर जो प्राइम होता है वो है 2। सो 2 के केस में ये हमारे पास कंडीशन ही नहीं ली जाती है, तो 2 का केस तो यहीं डिस्कार्ड हो गया। तो इसका मतलब जो हमारे पास प्राइम आ रहा है वो ऑड नंबर आएगा। किसी भी ऑड नंबर में 2 ऐड करोगे तो हमारे पास स्टिल ऑड नंबर ही रहेगा। अब इस ऑड नंबर में हमारे पास यहाँ से अगर हम 4 भी ऐड करें तो ये भी हमारे पास एक ऑड नंबर ही आएगा। सो 3 ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन आएगा, ये तो सीधी सी बात है। और इन तीनों ऑड नंबर में हमारे पास 2 तो डिवाइजर हो नहीं सकता, क्योंकि सारे ही ऑड नंबर हैं। तो इस केस में हमारे पास ये तीनों में से एक नंबर हमेशा 3 से डिवाइड होगा ही होगा, 3 का डिवाइजर होगा, 3 इनका डिवाइजर अगर होता है तो उस केस में हमारे पास की p कैन नेवर बी द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर। p तो कभी भी स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर होगा नहीं। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन थर्ड विद ऑप्शन ID यहाँ से 2 1 2 7 करेक्ट हो जाएगा। एंड देन लास्ट ऑप्शन p कैन बी द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर यहाँ से 3 भी इंक्लूड होता तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन D करेक्ट हो सकता था। बट
अभी ये करेक्ट नहीं होगा, सो इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. I hope you understand the explanation. Thanks for watching.